Hello everyone, myself Dr. Santosh Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Bangalore College, Pali. Students, today we are going to discuss the uptake of nutrients by plants. In my previous video lecture, we had discussed about the requirement of plants of about minerals for their mineral nutrition. मैंने उसमें आपको मैक्रो एलिमेंट्स माइक्रो एलिमेंट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स आदि के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि मिनरल अपटेक क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से और कौन से ऑर्गन्स या प्लांट में कौन सी ऐसी साइट्स हैं which are responsible for uptake of these nutrients or these minerals. Obviously, roots, mainly the root hairs, are responsible for this mechanism for uptake of minerals because roots are the underground portion of any plant which is in direct contact with soil solution. So, mineral uptake is the process in which minerals enter the cellular material, typically following the same pathways as water. Because water is also absorbed by the roots, so the pathway is almost same. The most normal entrance portal for mineral uptake is through plant roots. During transport throughout a plant, minerals can exit xylem and enter cells that require them. जाइलम के कॉलम में जब ये मिनरल्स वाटर के साथ साथ ट्रैवल करते हैं तो जहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट जिस कोशिका में होती है वहाँ पे ये छोड़ दिए जाते हैं. मिनरल आयंस क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ए केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो हैं खुद भी चार्ज्ड सरफेसेस होती हैं, सो एट सम टाइम they attract cations or sometimes they attract anions, and thus they form a chemiosmotic potential on their surfaces. Plants absorb minerals in ionic forms like nitrates, phosphate, potassium, all have difficulty crossing a charged plasma membrane. Now, this picture shows the photograph of a plant. इसमें आपको इसका अंडरग्राउंड पोर्शन रूट्स और अबव ग्राउंड पोर्शन लीफ और स्टेम दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनरल्स, वाटर एंड ऑक्सीजन ये तीनों एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं रूट्स के द्वारा और रूट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. देन लीफ में आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द लीव्स थ्रू देयर स्टोमेटा. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन water in the form of vapors is liberated out of these surfaces, and oxygen in the process of respiration it is being taken out and in by the स्टोमेटा ऑल्सो. एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का लिबरेशन इन स्टोमेटा के द्वारा बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा रही है. सो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पढ़ने के लिए यहाँ पे आयोनिक अपटेक भी हम इसको कह सकते हैं बिकॉज ऑल द मिनरल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ईदर कैटाइंस और एनाइंस. So ions may be taken up by the plant cells by two methods. First, by passive absorption and second by active absorption. What is passive absorption? It is the absorption of minerals without direct expenditure of metabolic energy. इसका मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्सपेंडिचर इस प्रोसेस में नहीं होता, और या हम कह सकते हैं कि दिस इज़ प्योरली अ फिजिकल process. In passive absorption, mineral salts absorption is not affected by temperature and metabolic inhibitors. Then rapid uptake of ions occurs when plant tissues are transferred from a medium of low concentration to higher concentration.
जैसा कि हम डिफ्यूजन में भी पढ़ते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या आयंस जब एक जगह पर काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं तो वे हमेशा डिफ्यूज़ करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और आयंस के लिए भी यही थ्योरी एप्लीकेबल होती है। द मेजर hypotheses or theories that explain the mechanism of passive transport of ions are mass flow theory, contact exchange theory, carbonic acid exchange theory and Donan's equilibrium. फॉर मास फ्लो थ्योरी, लेकिन इससे पहले मैं आपको सिंपल डिफ्यूजन के बारे में भी बताना चाहूँगी कि कुछ मात्रा में आयंस जो है सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से भी जब सॉइल सॉल्यूशन में इनकी मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है तो ये रूट की सरफेसेस के ऊपर डिफ्यूज़ होके चिपक जाते हैं और फिर रूट की सरफेसेस के द्वारा अंदर खींच लिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मास फ्लो थ्योरी, this theory says that ions are absorbed by the root along with mass flow of water under the effect of transpiration. ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में, जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स लीफ की सरफेस से बाहर निकलता है तो जाइलम के कॉलम में एक टेंशन क्रिएट होता है या एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाई कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस होते हैं और जाइलम के कॉलम में वाटर जो है एक कंटिन्यूस कॉलम के रूप में फ्लो करते रहना चाहता है, तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है जाइलम में ट्रांसलोकेशन होता है और साथ के साथ जड़ों के द्वारा पानी सोखने की प्रक्रिया भी होती है, और ये एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम जो है रूट से लेके लीफ की सरफेस पे जब ट्रांसपायर होता है वाटर तब तक कंटिन्यूस रहता है। बट दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द सॉल्ट अक्यूमुलेशन अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। सॉल्ट अक्यूमुलेशन के लिए हम सॉल्ट रेस्पिरेशन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। An increase in transpiration pull increases the uptake of ions by roots, the uptake of ions by free diffusion. So ट्रांसपिरेशन के साथ साथ हमेशा आयंस का अपटेक जो है ज़्यादा होगा। जब ट्रांसपिरेशन की रेट अधिक है तो अपटेक भी रेट इसकी भी ज़्यादा होगी। Thus mass flow of ions through the root tissues occur due to transpiration pull in the absence of metabolic energy. यहाँ पे मास फ्लो थ्योरी को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताया गया है कि किस तरह से स्टोर्ड फूड जो है जब रूट में या लीफ में लिबरेट होता है, जहाँ कि इसके मेनली जब रूट में लिबरेट होता है जो कि इसके सिंक्स हैं, तो किसी भी सेल से जब खूब अधिक मात्रा में शुगर्स निकल जाते हैं तो ये सेल्स, इनका जो सेल सेप है उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है, ऑब्वियसली ये जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है। इस वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ कई आयंस भी इसके साथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं या अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और अंदर की सरफेस में खींच लिए जाते हैं। तो इस तरह से मास फ्लो थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से आयंस डिफ्यूज़ होके रूट की सरफेसेस के अंदर जाते हैं। दूसरा है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। According to this theory, the ions adsorbed on the clay micelles get adsorbed to the root in exchange for hydrogen ions previously adsorbed on the roots. यहाँ पे आप नीचे जो एक डायग्राम बना हुआ है इसमें ये रूट, या हम कह सकते हैं कि रूट हेयर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अपटेक ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर आप हाइड्रोजन आयंस देख रहे हैं। ये हाइड्रोजन आयन जब रिप्लेस कर दिए जाते हैं, पोटेशियम आयन हमेशा इनको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, और जब ये रूट हेयर की सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से एड्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ये किसी भी समय अंदर पुल कर लिए जाते हैं। इस तरह से एक धनायन के स्थान पे दूसरा धनायन जो है रूट सरफेस के द्वारा अपने अंदर खींच लिए जाते हैं, या इसके एक्सचेंज में, मतलब एक्सचेंज इसलिए कहेंगे कि पहले तो ये दोनों जो कैटायंस हैं
वो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद में अंदर खींच लिए जाएंगे या डिफ्यूज़ हो जाएंगे अंदर। पहले ये सॉइल सरफेस के साथ, सॉइल पार्टिकल के साथ में चिपकेंगे, उसके बाद में अब यहाँ पे देखेंगे आपके पोटेशियम तो रूट की सरफेस पे आ गया है और हाइड्रोजन क्ले पार्टिकल के साथ में चिपक गया है। इसमें भी आप देखेंगे कि एक प्लांट सेल, ये रूट की सेल है, यहाँ पे ये रूट हेयर है और रूट हेयर में यहाँ पे इस तरह से पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है पोटेशियम ने और फाइनली पोटेशियम जो है अंदर एंटर करने में सफल हो जाता है। सो द आयन एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड पार्टिकल्स ऑसिलेट विद इन अ स्मॉल स्पेस when two particles are close enough, जब ये बहुत पास पास होते हैं, the oscillation space of an ion adsorbed to one particle overlaps the oscillation space of an ion adsorbed to another particle. This exchange of ions may take place, और इस तरह से आयंस का एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि रूट्स जब रेस्पायर करती हैं और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करती हैं तो सॉइल, जो विसिनिटी में सॉइल है वहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक वीक कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। ये कार्बोनिक एसिड जल्द ही डिफ्यूज़ होके दोनों, एक कैटायन और एक एनाइन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन प्लस 1 बाइकार्बोनेट आयन। रूट लिबरेट कर रही कार्बन डाइऑक्साइड, कंबाइन करता है वाटर के साथ, वीक कार्बोनिक एसिड बनता है विच सून डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्ले पार्टिकल के साथ में अडेयर होता है, चिपकता है, ट्रैवल करता है यहाँ पे पोटेशियम आयन के साथ में रूट की सरफेस तक पहुँचता है और फाइनली ये अंदर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से एक वीक कार्बोनिक एसिड के निर्माण से भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि द सॉइल सॉल्यूशन प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द क्ले माइसेल्स। Carbon dioxide released in respiration of root forms carbonic acid by reacting with water of the soil solution. Carbonic acid then dissociates in the soil solution to form hydrogen ion and bicarbonate ions, shown in the last diagram. Hydrogen ions are absorbed to the clay micelles in exchange for cations such as potassium, which are released into the soil solution. From here, these potassium ions, they may diffuse to the root where they may be adsorbed in exchange for hydrogen ion. क्योंकि एक कैटाइन ही कैटाइन को रिप्लेस करता है या एनाइन ही एनाइन को रिप्लेस करता है, इसलिए अगर पोटेशियम अंदर डिफ्यूज़ होता है रूट की सरफेस से सेल में तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं। चौथा जो हाइपोथेसिस है और लास्ट है पैसिव एब्जॉर्प्शन की, दैट इज डॉनन इक्विलिब्रियम। सेल मेम्ब्रेन is composed of macromolecules of proteins and lipids that have many carboxyl groups and phosphate groups, from which positively charged particles like protons of hydrogen can dissociate, leaving the macromolecules with negative charge. कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेसेस हैं यूजुअली ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। Thus the membrane is negatively charged. The negative charges are not diffusible because they are within the membrane structure. Because these negatively charged particles are made up of proteins and they are bigger in size, so they cannot come out of the plasma membranes. They just fixed on the surface, inner surface of a plasma membrane. इसलिए इनको फिक्स्ड प्रोटीन्स या फिक्स्ड आयंस भी कहा जाता है। द नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डॉनन फेज ऑल्सो। डॉनन इक्विलिब्रियम ये कहता है कि इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें, सपोज ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट आउटसाइड द
Donan phase. Donan phase means plasma membrane. The cation will tend to diffuse through the membrane because of electronic potential difference. The cations will finally come to equilibrium with fixed negatively charged charges of the membrane. जितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स फिक्स प्रोटीन्स मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे है उतनी ही संख्या में कैटाइंस बाहर की तरफ से अट्रैक्ट होंगे. क्योंकि सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट है, द chloride ions with negative charge will not move into the cell because of this electronic potential. क्योंकि जितने पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स्ड आयंस अंदर है उतने ही पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे. दे कैन however diffuse by chemical potential difference or difference of concentration of chloride on both sides of the membrane. Some potassium ion will also move into the cell by chemical potential gradient. Donan equilibrium ये भी कहता है कि the chloride ions which remain outside the membrane will set up an electric potential difference at the membrane surface which is negative on account of chloride ions compared to the external solution. Such an electric potential is called Donan potential. क्योंकि इस थ्योरी को F.G. डॉनन नामक फिजियोलॉजिस्ट ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसको डॉनन के नाम से ही डिस्क्राइब करते हैं. द डॉनन पोटेंशियल विल अलाउ पोटेशियम आयन टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन एंड रेपेल द क्लोराइड आयंस. ऑपोजिट चार्जेस रेपेल ईच अदर. दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डॉनन इक्विलिब्रियम. यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दो सेल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं. सबसे पहले तो ये एक रूट सेल है जिसमें आपको इनर सरफेस पे ये जो रेड कलर की लाइंस बनाई हुई हैं, दीज आर 6 फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज्ड इनसाइड. दीज आर द फिक्स्ड प्रोटीन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड because of the presence of these proteins on their inner surface. अगर इस तरह की सेल को एक पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं, यहाँ से 6 की संख्या में ही पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होंगे क्योंकि ये इनको अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 4 क्लोराइड आयन भी अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि इनको डॉनन इक्विलिब्रियम स्थापित करना है. इन जनरल डॉनन इक्विलिब्रियम क्या है? इन जनरल डॉनन इक्विलिब्रियम may be expressed in the form of a equation. This equation says that concentration of positively ions inside the plasma membrane if divided by concentration of positive ions outside is always equal to concentration of negative ions outside if divided by concentration of negative ions inside. And when the number of this equilibrium is 0, then the migration of these anions and cations automatically stops. As at Donan equilibrium, more cations tend to pass through the membrane. The cations will accumulate in the cell against diffusion gradient. So this is all about passive absorption of ions for mineral uptake in plants. Thank you.